السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، ڈائس پر تشریف فرما، علماء اکرام، دیگر تمام حاضرین، شرکائے مجلس اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس پروقار محفل میں میرا موضوع سخن ہے سماجی برائیوں کا تدارک سنت کی روشنی میں۔ معزز حاضرین، سماج جسے ہم دوسرا نام معاشرے سے دیتے ہیں، معاشرہ شوہر اور بیوی جو کہ معاشرے کی بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ معاشرہ انہی سے بن رہا ہے، وجود میں آ رہا ہے، نسلیں پھیل رہی ہے۔ اور اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو اسلام سے پہلے کا معاشرہ اور اسلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران اس معاشرے کی جو تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ معاشرہ اور آج کا ہمارا کرنٹ معاشرہ یا کرنٹ سوسائٹی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ان تینوں کا اگر ہم تقابل کریں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت نے اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، جس کی عکاسی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اے بادشاہ، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے اور کمزوروں کو کھا جاتا ہے، اور اسی طرح ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو جس کی امانت داری سے، جس کے اعلیٰ نسب سے، جس کی صداقت سے ہم اچھی طرح واقف تھے، اس کو ہمارے درمیان رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے ہمیں جو تعلیم دی وہ توحید کی تعلیم دی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تم اور تمہارے بزرگ جن معبودوں کو، جن پتھروں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، وہ تمہارے معبود نہیں ہیں، بلکہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس رسول نے ہمیں صداقت سکھائی، سچائی سکھائی، جھوٹ چھوڑنے کا حکم دیا، امانت داری کا درس دیا، اور قافلوں کو لوٹنے سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ہر طرح کے ظلم و بربریت سے ہمیں روکا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے ہم کو روکا۔ غرض یہ کہ وہ تمام برائیاں جو ہمارے اندر تھی، ان تمام برائیوں کا قلاقمہ کر دیا۔ یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ معاشرہ تھا جسے ہم سب سے بہترین معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین معاشرہ یہ میرے زمانے کا معاشرہ، یہ میری قوم جس نے میرا زمانہ پایا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ویسی تربیت کی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت کو خیر امت کہا، اور ان صحابہ اکرام کو جو سب سے پہلا زمانہ، سب سے پہلا معاشرہ جس کی تشکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، انہیں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے سامنے ایڈیل بننا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جو قیامت تک آنے والے ان صحابہ کو فالو کریں گے، ان کے لیے بھی اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی۔ وہ خیر امت جس کا لقب
हमको मिला है। खैर उम्मत का फरीजा क्या है? आदमी अपनी जगह अच्छा रहे, दूसरे लोग बुराई कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दे तो पूरा मुआशरा खराब हो जाएगा, पूरी सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी बेहतरी किसमें है? तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि तुम लोगों को भलाई की तरफ दावत दो और बुराई से रोको। ये उम्मत का फरीजा है, फर्ज मनसबी है। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अल्फाज में बयान किया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' फबिलिसानिही वइन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कहा तुम में से जो आदमी जब कहीं जहां कहीं जैसी भी बुराई देखे उसे अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो अपनी जुबान से रोके। अगर जुबान से रोकने की ताकत और इस्तिताअत नहीं है तो अपने दिल में बुरा जाने। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हर फर्द को खिताब करके कहा कि हर फर्द की जिम्मेदारी है, मुआशरे के अंदर जहां कहीं बुराई नजर आए उसे रोकने की कोशिश करे। उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि एक कश्ती में कुछ लोग सवार हों और कुछ लोग निचले लेवल पर ग्राउंड फ्लोर पर हों और कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर हों और ग्राउंड फ्लोर वाले पानी डायरेक्ट न ले सके, वो बार बार फर्स्ट फ्लोर पर जाए और वहां से पानी हासिल करें। अगर फर्स्ट फ्लोर वाले उन्हें रोके और ये कहें कि तुम बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, और अगर ग्राउंड फ्लोर वाले ये समझे क्यों ना हम कश्ती के अंदर ही सुराख कर ले, ये बार बार जाकर फर्स्ट फ्लोर वालों की बातें क्यों सुने, अगर इस इरादे को तकमील तक पहुंचाया जाए, अगर वो कश्ती में सुराख कर दिया जाए तो हलकू जमीअन, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों फ्लोर वाले डूब जाएंगे, दोनों के दोनों हलाक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर फर्स्ट फ्लोर वाले उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे नजऊ जमीअन, वो भी बच जाएंगे और वो सुराख करने वाले भी बच जाएंगे। मतलब क्या है? ये हमारी जिंदगी, ये हमारा मुआशरा, ये हमारी सोसाइटी एक सवारी है जिस पर हम सवार होकर जा रहे हैं सफे आखिरत पर। दौरान ऐसे कई लोग होंगे जो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, उन्हें उस वक्त रोकना कौम के दानिश्वरों की, कौम के उलमा की, कौम के सियासी रहनुमाओं की, हर आदमी की जिम्मेदारी है। वो चाहे बड़े हों या छोटे हों, अगर वो बुराई कर रहे हैं तो उन्हें रोकना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जरूर लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो और लोगों को बुराई से रोकते रहो, वरना फिर ऐसा होगा अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अपनी तरफ से अजाब मुसल्लत कर देगा और उस वक्त तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये कब होगा? जब मुआशरे में इस कदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि लोग उस की जाने वाली बुराई को, उस खुलेआम होने वाली बुराई को न रोकें। अल्लाहु अकबर। क्या वो मुआशरा जो सहाबा इकराम के दौर से पहले जो दौरे जाहिलियत का मुआशरा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर करना, काफिलों को लूट लेना, ताकतवर का कमजोर पर जुल्म करना और गर्ज जितनी भी बुराइयां थी, क्या वो सारी बुराइयां आज हमारे मुआशरे में हमें नजर नहीं आती है? हमें तो दिन और रात ये सारी बुराइयां नजर आती है, लेकिन क्या वजह है कि वो सहाबा इकराम हजरत जाफर रज़ी अल्लाह उनका कहना था कि जब हम इनकी बातों पर अमल करना शुरू किए तो हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। क्यों? मुआशरे की सही सुधार और मुआशरे को सुधार की तरफ ले जाया जा रहा था, मुआशरा सुधर रहा था, मुआशरे का बिगाड़ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, जुल्म हो रहा है, देख रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, देख रहे हैं, जिना हो रहा है, देख रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, ना जाने मुआशरे में कितनी बुराइयां हैं जो आए दिन फैलती जा रही हैं।
आए दिन फैलती जा रही हैं, लेकिन उसे रोकने की जैसी कोशिश होनी चाहिए वैसी कोशिश अभी तक नहीं हो पा रही है। बल्कि जरूरत है ऐसे मौकों पर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सहाबा इकराम के दरमियान मुआशरती बुराइयों को रोकने की कैसे कोशिश की थी। देखें, एक आदमी बुराई करता है, उसकी जात से ताल्लुक होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बुराई करता है, गुनाह करता है, तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, एक ब्लैक डॉट लग जाता है। लेकिन वो जैसे जैसे बुराइयों में आगे बढ़ता है उसका दिल पूरी तरह सियाह हो जाता है, हक व बातिल में तमीज खत्म हो जाती है। इसी को कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके दिलों पर जंग चढ़ जाता है। ये तो इनफरादी मामला है, लेकिन बात पूरे समाज की हो रही है, पूरी सोसाइटी की हो रही है। ऐसे कई गुनाह हैं जो पूरी सोसाइटी उसके अंदर मुलव्वस हो सकती है, बल्कि होती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों का तस्करा किया। किसी को हमने डुबो दिया, किसी को हमने आंधी के जरिए हलाक कर दिया, किसी को हमने जमीन में धंसा दिया मुख्तलिफ अज़ाबात से। और कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उनके जुल्म के करतूत की वजह से अल्लाह ने उन्हें वो सजा दी। पूरी कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। अब अगर आप देखें, पिछली कौमों में जो कॉमन बुराई थी वो था शिर्क, वो था शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह का इनकार करना। और दूसरी बुराइयां अलग अलग कौम में अलग अलग पाई जाती थी। किसी कौम में ताकत का गुरूर था, कोई कौम माल में खयानत करती थी, कोई कौम नापतोल में कमी करती थी, कोई कौम लुआतत में मशगूल थी। ऐसी बुराइयां थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हलाक कर दिया। आज आप देखें, आज के इस असर हाजिर में, इस करंट सिचुएशन में हमारी कौम में कितनी बुराइयां पाई जाती है। उन तमाम कौमों की इनफरादी बुराइयां, उन तमाम कौमों की इनफरादी अमाल आज हमारी कौम में एकजा नजर आते हैं। लेकिन अफसोस है हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि खैर उम्मत का लक़ब हमको मिला है। हमें रोकना चाहिए, हमें उसको रोककर मुआशरे को बेहतरीन रास्ते पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है। एक आदमी आकर कहता है, या रसूल अल्लाह इज़्न ली फी ज़िना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सारे जितने सहाबा होते हैं परेशान हो जाते हैं, ये कैसी इजाजत मांग रहा है, एक हरामकारी की इजाजत मांग रहा है। आज हमारे माशरे में इस हरामकारी के मुख्तलिफ नाम हो चुके हैं, मुख्तलिफ अंदाज बदल चुके हैं, लोग उसको गवारा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से बड़े प्यार से समझाकर उसे उस बुराई से रोका और पूरे मुआशरे को उस बुराई के खतरनाक नताइज से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, क्या तू ये पसंद करेगा कि कोई शख्स तेरी मां से ज़िना करे, कोई शख्स तेरी मां से ज़िना करे? वो कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मैं हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करूंगा। आपने कहा, तो फिर दूसरे लोग कैसे पसंद करेंगे? हो सकता है कि किसी की माँ हो, या फिर तो क्या अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से, अपनी खाला से, अपनी फूफी से जिना को गवारा करेगा? वो कहेगा कि हरगिज़ नहीं। वो कहता है, हरगिज़ नहीं, मुझे गवारा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दूसरा शख्स कैसे बर्दाश्त करेगा? कोई दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा, उसके हक में दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व हस्सिन फ़रजहु, अल्लाह इसके गुनाहों को पाक कर दे, इसके दिल को साफ कर दे और इसको शर्मगाह के शर से बचा ले। आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा फितना है, वो फितना है शादियों का ताखीर से होना और नौजवान नस्ल का गलत रास्तों पर जाना। और उसके लिए माज़अल्लाह कहने के लिए वक्त नहीं है और ना ही वो कहना मुनासिब है। ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, मुआशरे में उसे गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है। इसके बहुत से असबाब हो सकते हैं, इसके बहुत से असबाब हो सकते हैं, लेकिन जिन असबाब की वजह से हमें इस जिना को रोकना है, उनमें बहुत बड़ा सबब बच्चियों के लिए
इंतखाब में ताखीर करना, जहेज का मुतालबा करना, ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से निकाह में ताखीर और जिना में आसानी होती जा रही है। हमें हुक्म दिया गया कि निकाह करने के बाद की जो मोहब्बत है वो असल मोहब्बत है, निकाह से पहले की कोई मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम युरा लिल मुतहाब्बैन इल्ला मिस्ल निकाह, निकाह से जैसी मोहब्बत किसी और में देखी नहीं गई, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका इजहार किया। और पूछा गया जब आपसे कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो कहा आयशा, आपने खुलकर उसका इजहार किया। लेकिन अफसोस आज हमारे माशरे में निकाह हो रहे हैं, निकाह होने के बाद भी इख्तिलाफात देखने में आ रहे हैं, निकाह होने के बाद भी शौहर और बीवी के दरमियान बॉन्डिंग नहीं है, शौहर और बीवी के दरमियान ट्रस्ट नहीं है, शौहर और बीवी के दरमियान एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, बेएतमादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बगैर किसी ट्रस्ट के जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे पर शक करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसके कई एक वाकयात हमारी आंखों के सामने सोशल मीडिया के जरिए से आते रहते हैं। कोई शौहर बीवी को कत्ल कर रहा है, कई बीवी शौहर को कत्ल ही नहीं बल्कि कत्ल के उस लेवल तक चली जा रही है जिसका तसव्वुर भी करते हुए पूरा इंसान या पूरी इंसानियत कांप जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? मुआशरे के अंदर ये बिगाड़ शौहर और बीवी के दरमियान जिस रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रिश्ते के सिलसिले में कहा था कि ये असल मोहब्बत तो यही है, लेकिन मोहब्बत के शैतान दूसरे रास्ते दिखा रहा है, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं और उम्मत के दरमियान भी ऐसे मसाइल और ऐसी चीजें देखने में आ रही है। और फिर इसी तरह हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी बुराई जो बातिल तरीके से माल खाने की है, वो बहुत आम हो चुकी है। घर बैठे पैसे कमाने के नित नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, हराम तरीके से पैसा आ जाए। अल्लाह ने मना किया, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से माल ना खाओ। लेकिन ऐसे लोग आज उस जमाने में जी रहे हैं, यह जमाना ऐसा आ चुका है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि वो माल हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है। अब वो चाहे रिश्वत हो, रिश्वत तो इतनी आम हो चुकी है जिसे लोगों ने मुख्तलिफ नाम दे दिया है। जिसके पास पैसा हो वो अपनी रिश्वत के जरिए से मुख्तलिफ काम बना निकाल लेता है, लोगों का माल हड़प लेता है, लोगों के हुकूक हड़प लेता है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाला और रिश्वत खाने वाला दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। और फिर इसी तरह हमारे दरमियान आपस में एक दूसरे को धोखा देना, बिलखुसूस तिजारत में धोखा देना, फ्रॉड करना, पैसे लेकर भाग जाना कॉमन हो चुका है। हर गली में, हर शहर में, हर मकामात पर ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस के नाम पर पैसा लेकर ठग रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, बिजनेस में फ्रॉड कर रहे हैं। नो एक्सचेंज नो रिटर्न बोर्ड पर लगा दिया तो ये समझते हैं कि हम चाहे जितना फ्रॉड कर ले वो हमारे साथ ब्लेम नहीं कर सकता है, वो हमारे सामने मुकाबला आजमाई नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी गेहूं बेच रहा है, रात को बारिश होती है, बारिश की वजह से वो गेहूं भीग जाती है, वो गेहूं भीगी हुई गेहूं को नीचे रखता है, सूखी हुई गेहूं को ऊपर रखता है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से इत्तला देता है, अल्लाह के नबी ये शख्स धोखा दे रहा है, मिलावट कर रहा है। अल्लाह के नबी जाते हैं, उसके अंदर हाथ डालते हैं और पूछते हैं, मा हाज़ा या साहिब अत्ताम, अगल्ले वाले, अगल्ला बेचने वाले, ये क्या है? अंदर कच्चा है ऊपर सूखा है, ये क्या मिलावट है? वो शख्स कहता है, अल्लाह के नबी रात को बारिश हो गई थी, अगर मैं उस माल को अलग रख कर बेचूं तो लोग कीमत नहीं लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। देखिए आप, एक मिलावट की वजह से अगर कोई शख्स धोखा दे तो अल्लाह के नबी ने कहा वो हम मुसलमानों में से नहीं। अब कितने लोग हैं
جو دھوکہ دے رہے ہیں، دین کے نام پہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں، تجارت کے نام پہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کے نام پہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ایک چیز کئی لوگوں کو بیچی جا رہی ہے، کئی لوگوں کے درمیان فروخت کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی تجارت پر پھر سے دوبارہ ڈیل نہ کرے. ایک مرتبہ ڈیل ہو گئی، ڈیل کینسل، ایڈوانس کینسل، مختلف طریقے سے مال ہڑپا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا. یہ بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے جو پورے معاشرے کو کھوکھلا ہونے سے بچاتی ہے، پورے معاشرے کو مضبوط کرتی ہے، پورے سوسائٹی کے اندر جو فساد کی جڑیں ہیں ان تمام کا خاتمہ کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو جائیداد دی ہے، حسد نہ کرو. ولا تحاسدوا، حسد سے بچو. حسد کیا ہے؟ معاشرے کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا بنانے والی چیز ہے. تو حسد آپس میں نہ کرو. حسد کی وجہ سے کئی ایک جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے جادو کیا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے نئے فسادات برپا ہو رہے ہیں. اور اسی طرح کہا ولا تناجشوا، قیمت بڑا چڑھا کر نہ بیچو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بلکہ آگے کہا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. سگے بھائی تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اسلام نے جس اخوت نے پرویا ہے، جس اخوت کے بندھن میں باندھا ہے، اسے اسلامی اخوت کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کوئی سگا بھائی اپنے بھائی پر ظلم کر نہیں سکتا ہے. اسی طرح یہاں اللہ کے نبی نے کہا لا یظلم ہو، وہ ظلم نہ کرے، وہ کسی دشمن کے حوالے نہ کرے، اپنے بھائی کو حقیر نہ جانے، گرا ہوا نہ سمجھے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ شخص جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، سب سے بدترین آدمی بدتر ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے، لہذا وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے. چوری اور ڈاکے تو بہت عام ہو چکے ہیں، آن لائن بھی ہو چکے ہیں، آف لائن بھی ہو چکے ہیں. نت نئے طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپا جا رہا ہے. وہ چوری جسے اسلام نے ایسی سزا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑے خاندان کی تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ لوگوں سے عاریتاً کچھ سامان لیتی تھی، واپس لوٹانے میں انکار کر دیتی تھی. لوگوں نے اس پر الزام لگایا اور الزام ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، اب اس کا ہاتھ کٹنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاندان کے لوگ جانے سے گھبرا رہے ہیں کہ کون جا کر اس عورت کے بارے میں سفارش کرے، ریکمینڈ کرے. یہ بڑے معزز خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے. لیکن دیکھا گیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، وہ سفارش کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے. وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھری کھری سنا کر کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں. معاشرے کے اندر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے لینے والوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور یہ اللہ کی حد ہے. اور اس اللہ کی حد میں تم سفارش کر رہے ہو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان میں سے جو معزز قبیلے کے معزز خاندان کے لوگ برائی کرتے تو ترکو، اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی، اسے چھوڑ دیا جاتا. آج کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان مجرموں پر روک نہ لگائی جاتی تھی، اور جو ان میں کمزور ہوتا تھا اس پر سزا نافذ کی جاتی تھی. آج بھی معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सुनो कान खोलकर, वअय्युल्लाह, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिनते मोहम्मद, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सरक़त, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती और उसकी चोरी साबित हो जाती, लक़तअतु यदह, मैं उसका भी हाथ काट देता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की हदें हैं और इस अल्लाह की हुदूद के दरमियान किसी की सिफारिश काम नहीं आती है। और आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा जुर्म वो है नशा। नशे की वजह से सारे बुराइयां जन्म ले रही है, जिसकी वजह से नित नए जराइम, ऐसे खतरनाक जराइम जिसके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ऐसे खतरनाक जराइम आज हमारे माशरे में देखने में आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल खबाइस करार दिया किसको? शराब को। कितने मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं? कितने मुसलमान हैं जो मुख्तलिफ तरह के नशे में मुलव्वस है? ये कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं, उससे बचना चाहिए। लेकिन लोगों को आज मुख्तलिफ तरीके से इस नशे की आदत में मुलव्वस किया जा रहा है, हत्ता के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को चॉकलेट्स की शक्ल में नशे की आदत डाली जा रही है। ये नशा जो कत्ल पर आमादा कर रहा है, कत्ल कर रहा है, इंसान अपने घर वालों को कत्ल कर रहा है, अपने दोस्त को कत्ल कर रहा है, अपने बाप को कत्ल कर रहा है, अपनी माँ को कत्ल कर रहा है, उसे उसका अंदाजा तक नहीं है कि वो किसको कत्ल कर रहा है, अपने बच्चों को तक कत्ल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोका, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे इस शहर हैदराबाद में कत्ल के अंदर जो जराइम है जो बहुत बढ़ चुके हैं, ये वो दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा दौर आएगा, कातिल को नहीं पता क्यों कत्ल कर रहा है, मकतूल को नहीं पता क्यों कत्ल किया जा रहा है। ऐसे ही दौर से हमारा गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखें, एक मुसलमान का कत्ल, एक मुसलमान का कत्ल कितना बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ इज्तमा अहलुस समावाति वल अर्द अला क़त्ल रजुलिन मुस्लिम लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार, अगर एक मुस्लिम आदमी के कत्ल में पूरे आसमान वाले, पूरी जमीन वाले मिल जाएं और अगर वो कत्ल करें किसी एक मुसलमान को, अल्लाह तबारक व तआला पूरे के पूरे लोगों को जहन्नम में औंधा डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला बनाए और हमें खैर उम्मत के मुताबिक हमारे अपने फरीजे को अंजाम देने वाला बनाए। जहां कहीं भी हम नेकी देखें उसको फैलाएं, जहां कहीं हम बुराई देखें उसको रोकने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।